Leaders quality initiative. Please come. Can I sit? Please sit. Just please introduce yourself. My name is I'm studying the final year in the Chennai College of Pharmacy in Kolkata. And tell me about your family. My father is a businessman, my mother is a housewife. I am from the Deshmukh family, and our native place is Gurgaon. Okay, so Mr. Nave, you are applying for the post of production manager. What do you know about your profile? I am fresher. I have not shared much working. I asked you, what do you know about your profile? What is the role and responsibility of a production manager? Production manager should be motivated always for the other people and should be courage and decision making fast decision making. Should handle all the units under working all people are working under him. Should be polite. Do you have work experience? No, sir. If you don't have work experience, how will you work in our company? I will try to. I am trying to learn that. Still learning. You will spend our time learning. That will be good. It will be very risky for us. How can we appoint a manager who does not have experience of the work? How will you manage? देखिए अब ये जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें से जिस चीज पर आपको डाउट है लिख लो, ठीक है, और इंटरव्यू होने के बाद मुझे पूछ लेना कि सर ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है? हाउ विल यू वर्क? यू डोंट हैव एक्सपीरियंस. Just tell me मैनेजर के बारे में about your कुछ समझ नहीं strengths. आता. What are the strengths of एक्सपीरियंस है तुम करेंगे जाना जो पोस्ट देती है अप्लाई I can manage all things. Okay. As you said, you have leadership quality. So tell me a situation when you perform the role of a leader. Is there any situation when you perform a leader's role? No. Then how can you say yourself a leader? Okay, next. Again, you said you can work better in difficult situation, in stress situation. Is there any situation you remember that the situation was very difficult and you performed very well? No situation. What are your hobbies? सिटी का साले Like playing. बढ़ जाएंगे What do you do? What do you do? Volleyball. क्रिकेटर वॉलीबॉल Who is your favorite player? शायद विचार Yusuf Pathan. Why do you like Yusuf Pathan?
Yusuf Pathan. always in the form. He's always in the form. But now he's not in the team. So what do you think? What is the reason that he's not in the team? Selection, he's not playing. Yes, sir. What's yours? Meeting है ना meeting में ना शंकर जाना है meeting साढ़े आठ में हम लोग भी नहीं सुन साढ़े ग्यारह हाँ साढ़े ग्यारह Why do you want to join my company? Your company is your company established more than 15 years, 18, and your company in the market, your company is a very good reputation. And I would love to work with your company. Your company is very good. Your company performance very good, excellent. Okay. Where do you see yourself after 5 years? After 5 years. देखिए अपना इंटरव्यू देने जाने के लिए Myself as a CEO. If I perform well, it depends on my performance. How I perform. You see yourself as a CEO. करते कम बेस्ट बेस्ट में लगे Tell me the reason that we should select you. Okay, what are the start reasons that we should select you? I have the quality that I can make more productions to the company. And ऐसा I handle the workers. I will motivate them always to perform more production. I will never let down the company's profile and reputation. I will give my 100% for progress of the company. I will be always loyal. 8 मिनट के लिए बात Do you have any question 8 for मिनट us? What is this opportunity? There are many opportunities. As you know, if you are selected, you will enter as a manager position. Then if you perform better, you can become a regional manager, area manager. Package will be also low changes. Again, promotion. I don't know लेडीज का Is there any process for other second order? So there is no second order. You have to sign up now. Okay? And if you do this, we will inform you whether you are selected or not. Thank you so much. All the best. क्वेश्चंस ये इंटरव्यू में से अगर आप वहां होते तो आपको क्या डिफरेंस लगता? कुछ क्वेश्चंस जैसे कि व्हाई यूसुफ पठान इज नॉट इंडियन क्रिकेट टीम, ये है ना भले ही अपना फेवरेट हो लेकिन उसकी गलती बताने में भी नहीं चूकना है, गलत है। तेरा बाकी आई थिंक ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल नाउअडेज, देयरफॉर ही इज नॉट इन द टीम। देखिए कितना स्ट्रेट आंसर है, he is not performing better nowadays, therefore he is not in the team. See, ये क्या है आपको, यहाँ पर आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस चेक किए जा रहे हैं। मतलब होता है जो मेरा फेवरेट होता है मुझे उसमें कुछ गलती दिखाई नहीं देती, बट यहाँ आपको बताना पड़ेगा। दो ही इज माय फेवरेट प्लेयर, बट nowadays some other players are performing better than him, therefore he is not in the team. ये क्या बताता है? ये आपकी एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि भले ही वो आपका फेवरेट है लेकिन आप किसी और की तारीफ कर रहे हो,
ये वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को डिफिकल्ट है? हाँ, विदाउट एक्सपीरियंस, वेरी गुड। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन तो आना ही आना है फ्रेशर्स को। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स आउटसाइड, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर फ्रेशर, देन व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाना है और वहाँ पर बोलना ही है कि सर दो आई एम अ फ्रेशर बट नाउ आई नो very well about this profile. I have knowledge about this industry. I have studied about this profile, and I have all the skills and qualities which are required to perform as a manager. जो कंपनी को तो ये चाहिए ना, कंपनी को एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, कंपनी को क्या चाहिए पहले कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको इस प्रोफाइल पे काम करने आता हो, इस काम करने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए, इस प्रोफाइल पे काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। आपको सिर्फ यही बोलना है, दो आई एम अ फ्रेशर बट आई नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोफाइल एंड आई थिंक आई कैन परफॉर्म बेटर देन एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एवरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन वाज वंस अ फ्रेशर। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि एवरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन वाज वंस a fresher. So once I join, I will improve myself and I will prove that I was the right choice at the time of selection. ये आप दो तीन में से कोई एक बोल दो, दो बोल दो, तीनों भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यूअर कैसा है। अगर इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली है तो तीनों स्टेटमेंट, अगर इंटरव्यूअर बहुत शॉर्ट में बात कर रहा है तो एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस को बुरा नहीं बोलना है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आई एम फ्रेशर, आई एम मोर एनर्जेटिक, आई एम मोर enthusiastic, I am more ambitious, and those experienced people they are very lazy and they are very diplomatic, they spend their time in other thing. Okay, उनको बुरा नहीं बोलना, अपने आप अच्छा बोलना है, लेकिन उनको बुरा नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ एक इनडायरेक्ट आंसर ये भी हो सकता है कि सर आई ऑब्जर्व दैट most of the time freshers are more energetic, freshers are more ambitious and freshers are more committed toward their profile. ये भी आंसर हो सकता है कि freshers जो होते हैं, मैं नहीं, freshers जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जॉब को लेकर बहुत एम्बिशियस होते हैं और बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं और उनका एटीट्यूड भी बहुत लर्निंग वाला होता है। सो आई थिंक फ्रेशर्स शुड बी प्रेफर्ड, आई थिंक फ्रेशर शुड बी गिवन द चांस। मुझे नहीं, फ्रेशर को, मैं खुद फ्रेशर ही छूँ, समझ रहे आप? तो कुछ आंसर्स इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यूअर उसको एक्सेप्ट करता है, यानी हर बार मैं वो और आप भी छोड़ो ऐसे आंसर, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगेन और जैसे बच्चे ने बोला था उसके फादर बिजनेस करते हैं, ठीक है। समटाइम क्वेश्चंस ये आते हैं इंटरव्यू के अंदर कि आपके फादर बिजनेस करते हैं तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे उसको, क्यों जॉब करते हैं? तो उसके लिए क्या गुड। देखिए अब इसमें ये कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे कि बिजनेस में तो बिजनेस में किसी के फादर फार्मर है, व्हाई डोंट यू जॉइन योर फादर इन फार्मिंग? डू यू थिंक दैट फार्मिंग इज अ वेरी लो प्रोफाइल जॉब, इमोशनल? तो वो कुछ भी बोले कि तुम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो फादर के साथ, फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे हो फादर के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि सर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाज डिफरेंट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाज डिफरेंट एंड माय फादर हैड मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, ही वांट्स मी टू बी अ हायर पोजीशन and the business is a limited business and he is enough to handle it. Two people are not required to handle this business. My father is enough for this business, therefore it is his wish that I should go at higher level. ये हो सकता है, ये उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। पहले तो ये बोल देना है कि our business is a limited business and only one person is sufficient to handle it, okay. But whenever I tried to help my father, he pushed me toward this profession. He always wanted me to be at higher profile and I want to make his dream true. ये उनका ही सपना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके सपने पूरे कर रहा हूँ। ये डिप्लोमेटिक आंसर है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगेन फिर आप ट्रेनिंग इसमें तो फिर आप हमारा काम कैसे करोगे? हाँ
देखिए सबसे पहले तो इसमें मैंने कहा कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, लर्निंग बोलने नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आप अगर लर्निंग करने आ रहे हो तो कंपनी काम कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये होना चाहिए कि जैसे कि आंसर ये होना चाहिए, आई हैव ऑल द स्किल्स एंड क्वालिटीज विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस प्रोफाइल, ठीक है। और अगर कोई इंटरव्यूअर कहता है कि अभी तो आप सीख रहे हो, तो सर मेरे को उतनी नॉलेज तो है जितनी काम करने की चाहिए, एडिशनल चीज़ें मैं सीखूंगा एंड आई विल अप्लाई। यानी आप पूरी तरह से ये नहीं बोलना कि मैं सीख रहा हूँ, नहीं, मुझे काम आता है, मैं काम करूँगा और काम करते करते सीखूंगा, ये आंसर हो सकता है। यानी अपने आप को बिल्कुल एकदम नौसिखिया भी नहीं बताना है, मुझे पता है कैसे काम करते हैं और मैं सीखूंगा, उसको अप्लाई करूंगा और इम्प्रूव करूंगा, ये आंसर हो सकता है। अगेन और कुछ ये सिचुएशन में से लीडरशिप क्वालिटी मैंने आपको पूछा, क्या आंसर देना है? तो देखिए सबसे पहले तो क्वालिटीज वो बतानी चाहिए जिसके कुछ सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और एक आध ऐसा इंसिडेंट, एक आध ऐसा वाकया जो वाकई में आपकी उस क्वालिटी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी, मैंने तुरंत पूछ दिया बताओ कैसे, बताओ कैसे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी कॉलेज के पीरियड में कुछ भी आपने काम किया हो, जैसे कि आपने एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, आपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, ठीक है। इसमें आपने कुछ लोगों को ये काम दिया, उसको वो काम दिया, किसी को ये लगाने के लिए, तो आप लीडर हो गए ना, आप लीडर हो गए। तो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस भी बताओ। वंस देयर वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट आवर कॉलेज, देखिए मैं आपको दे देता हूँ सबके लिए। वंस देयर वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट आवर कॉलेज and there were different responsibilities to receive the guest, to provide them accommodation, to arrange classroom, to keep ready the PPT, screen, chairs, camera and board. So there were many tasks. So what I did, I made a group of students and there were 4 students. I assigned them different tasks and I ask them to report me time to time. Whenever they found problem, I helped them. So I think in these 3 days, I played a leadership. समझ रहे हो? तो किसी भी सिचुएशन को पकड़ो और उस सिचुएशन को थोड़ा बड़ा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। भले ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक अकेला इंसान सब कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा कर दो। भले ही यहाँ 50 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 2 लोगों ने हेल्प की, 5 लोगों की हेल्प की, एक को मैंने कहा ये करो, एक को कहा ये करो, एक को कहा ये करो, और उनका मैं टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग लेता रहा और उनको जब भी कोई डिफिकल्टी आई मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया और इस तरह से हमने एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको स्मूथली चलाया और उसको सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया। ये थी मेरी लीडरशिप क्वालिटी, समझ रहे हैं? यानी क्वालिटी सिर्फ बोलने से क्वालिटी नहीं होती है, आपको उसको प्रूव करना पड़ता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैंने यहाँ प्रूव किया। अब ऐसे ही पेशेंस तो होता है, अगर आपको मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है मेरे अंदर, तो फिर एक सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि जहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि फैमिली मैटर में या फिर कहीं कॉलेज में ऐसे हो गया कि एक बार कुछ लड़कों ने कुछ किया और प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ लिया, जबकि मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। बहुत चला, मेरे टर्मिनेशन तक बात आ गई, लेकिन मैंने रिटेलिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ एविडेंस प्रोवाइड किए और आखिर में मैंने अपने आप को प्रूव किया कि आई वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सम अदर वन वाज रिस्पॉन्सिबल एंड इन दिस वे आई सर्वाइव। अगर उस पीरियड में मैं एग्रेसिव हो जाता, गुस्सा कर देता, लड़ लेता या सीनियर्स को कुछ बोल देता तो हो सकता था मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता। तो मुझे पता था कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो सारे प्रोसेस में मैंने क्या किया, अपने पेशेंस बनाए रखे। अब ये सिचुएशन में बोल रहा हूँ, सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हर क्वालिटी के लिए आपको एक एविडेंस देना है कि ये एविडेंस है मेरे पेशेंस का, ये एविडेंस है मेरी लीडरशिप का, ये एविडेंस है मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, कैसे? एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे हुआ, एक कॉलेज में गरीब बच्चे का एडमिशन कराना था, उसके पास पैसे नहीं थे फीस के लिए, ठीक है। यानी कॉलेज की फीस 25,000 थी,
और उसके पास सिर्फ 5,000 थे और कॉलेज वाले मान नहीं रहे थे। मैं उसके साथ गया, मैंने प्रिंसिपल को सिचुएशन समझाई ऐसे 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 और प्रिंसिपल मान गया। तो मुझे लगता है मेरे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि प्रिंसिपल उस बच्चे को जब पहली बार नहीं माना, मेरे समझाने से मान गया। सो आई थिंक आई हैव बेटर कम्युनिकेशन। अभी सिचुएशन आपकी अपनी सबकी है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन। मुझे ट्रेन में बैठने को जगह नहीं मिली थी, मैंने कम्युनिकेशन से ली। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं खाली ये स्टेशन से वो स्टेशन खाली घूमता था। तो ऐसे एक बार ट्रेन में मैं चढ़ा, फुल गर्दी जनरल डब्बे में। अब होता है कि जब भी अगले स्टेशन पे जो उतरने वाला होता है, हम वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, हमको मालूम है ये उतरेगा तो अपन बैठेंगे वहाँ। तो मैं भी वैसे एक कपल के पास, एक कपल थे जो अगले स्टेशन पे उतरने वाले थे, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। अब उसमें हुआ क्या मालूम, वो दो तीन स्टेशन बाद उतरने वाले थे। 2 स्टेशन के बाद में 2-3 लेडीज चढ़ी, उनके साथ में 4-5 बच्चे थे, वो भी वहाँ पे खड़े हो गए। अब जैसे ही वो दोनों बेचारे ओल्ड कपल उठे, इन्होंने अपने बच्चों को बैठ 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 तो बच्ची पिंकिस बैठो जल्दी से। मैंने बोला अरे 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 मैं खड़ा हूँ, मैं बोला यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ और मैं बैठने वाला। नहीं नहीं भैया कुछ नहीं हो सकता। बोले हम बैठ गए, हमने जीत ली जगह। हम ट्रेन में ऑटो मुझे नहीं लग सकता, बड़ा खतरनाक रहता बैठना। तो मैंने कहा यार जल्दी छोड़ो, इनको फूल लगे। तो अब वो बच्चे बैठ गए। मतलब अब यहाँ पर कुछ ऐसा करो कि सीट मिले अपने। थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा मैं, फिर मैंने देखा वो संतरा गोली वाले आते। संतरा गोली में 5 रुपए का पैकेट रहता हो, 5 रुपए के पैकेट में 7-8 गोलियां रहती। मैंने वो लिया, एक मैंने खाया और बाकी उनके बच्चों में बांटा। बोले बेटा ले ये ले ये ले ये ले। अब उन्होंने देखा यार आपने इसको जगह नहीं दी और अपने बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। तुरंत बंटी उठ बेटा, अंकल को बैठने दे। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो जैसे उसने कहा कि बंटी उठ, अंकल को बैठने दे, मैंने बेटा बैठ हो गया मेरा काम, हो गया मेरा। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर कुछ लोग बहुत किसी टॉपिक पे बहस चल रही थी। अब वो ट्रेन के ऐसे रहते, ये बेंच खूब दबा दबा कर बैठे। हम मतलब अब यहाँ चेयर लेके देखेंगे, अब यहाँ मिलती है चेयर। तो वो आपस में बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, मैं खामोश सुनता रहा। और मैंने बीच में इंग्लिश में तारीफ कर दी। मैंने कहा सर रियली आई अप्रिशिएट योर स्टेटमेंट, अमेजिंग सर। अब सब मेरे को देखिए समझ रहे आप, सिर्फ इंप्रेशन। मैंने कहा सर रियली आई अप्रिशिएट योर स्टेटमेंट, अमेजिंग सर। तो अब मेरे को कुछ नहीं बोले। फिर उनकी बात चली। फिर मेरे को पूछा आप क्या करते हैं? मैं बोला सर मैं कॉलेज में लेक्चर हो रही है। तो इधर बैठे वाले को होने वाले ए उठ बैठा दे बोले इसको उठाया, मैंने दिखाया। तो समझ रहे आप, अपने आप को चेक करते हैं, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि मेरा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं किसी को बनवा सकता हूँ किसी चीज़ के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये चीज़। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। अगर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन बताओ ये इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि तकरीबन सब एक जैसी गलती करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि हर इंटरव्यू के बाद हम डिस्कस करें कि कौन सी सिचुएशन में क्या क्या, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और क्या करना चाहिए आपको? फ्रेशर का तो मैंने कहा कि फ्रेशर का आप ये बोल सकते हो कि सर दो आई एम अ फ्रेशर बट आई नो हाउ टू वर्क इन दिस प्रोफाइल। इस प्रोफाइल पे काम कैसे करते हैं मुझे पता है, और इस प्रोफाइल के लिए जो क्वालिटीज हैं वो मुझ में है, ये बोल सकते हैं। लेकिन पहले स्टडी करके जाना है। हाँ, उस प्रोफाइल की स्टडी होना बहुत जरूरी है कि मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो मैनेजर इज अ लीडर। मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all the activities in production department, to get raw material, to make a fine product and to deliver material on time. This is the responsibility of production manager, to check machines time to time, to train employees how to operate the machines. ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे मेन प्रोडक्ट, raw material, manufacturing, fine product, packaging. Use. Again, any question? आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना है? लेकिन कंपनी मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और ये मतलब बड़ी भी नहीं, तो फिर क्या आंसर है? हाँ,
देखिए कैसे होता है, सबसे पहले तो जाने से पहले उस कंपनी की स्टडी करनी चाहिए और हर कंपनी का स्टडी बहुत आसान हो गया आजकल, क्योंकि हर कंपनी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनका होम पेज पढ़ना है, ठीक है। और हर कंपनी क्या करती है मालूम, खुद का एक की पॉइंट मेंशन करती है वेबसाइट कि हाउ आर कंपनी इज डिफरेंट देन अदर कंपनी। वही पॉइंट पकड़ के लाना है, वही उन्होंने जो मेंशन किया ना वही पॉइंट पकड़ के लाना है और वही पॉइंट उनको कहना है। जैसे कि उस कंपनी ने मेंशन किया कि वी हैव कोलैबोरेशन विद जर्मन कंपनीज, हमारा जर्मनी की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन, तो सीधा वही पॉइंट पकड़ना है और वही बोलना है सर दो योर कंपनी इज न्यू बट योर कोलैबोरेशन इज विद the reputed brands of Germany, so I think this company has great future, and if I get associated with your company, it will be a great growth for my career. उसकी तारीफ करना, कितनी भी छोटी कंपनी रहने दो, कितनी भी छोटी कंपनी कितनी भी छोटी रहने दो, उसकी तारीफ करना और जेन्युइन तारीफ करना। वेबसाइट पे पहले निकालो वो कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, वो कंपनी के कितने ब्रांचेस है, वो कंपनी को क्या क्या सर्टिफिकेशन मिला, सर्टिफिकेशन भी होते हैं कंपनीज के, वो सर्टिफिकेशन याद करके जाओ। सर योर कंपनी इज सर्टिफाइड विद ISO 9001, योर कंपनी इज सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक, योर कंपनी वाज अवॉर्डेड एज इमर्जिंग इंडस्ट्री, सो आई थिंक सर इफ आई कम टू योर कंपनी माय करियर विल बी बूस्टिंग। ये आंसर होना चाहिए, जेन्युइन एप्रिसिएशन। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट पर बात नहीं करना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तारीफ करते करते वीक पॉइंट में भी जाते हैं, जैसे वीडियोकॉन, तो वीडियोकॉन इज योर ब्रांड दिस बट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ब्लैक लिस्टेड इट, आई डोंट माइंड इट, आई थिंक इट विल ओवरकम। नेगेटिव पे बात ही नहीं करना, पॉजिटिव। अगेन एनी क्वेश्चन? No questions? So we'll stop here. Yes, yes. Sharp at 12:30. Yes. We will come back.